Good morning everyone. I hope everyone is in pink of health. We all have gathered here to celebrate the spiritual significance of National Sports Day, which is celebrated on 29th of August every year on the birth anniversary of Major Dhyan Chand, who is an Indian hockey player. On the behalf of Principal Sir, Vice Principal Sir and faculty, I would like to extend my heartiest greeting to Dr. Arun Singh Rathore, who is the national referee in weightlifting and PhD holder, as our beloved guest for today's event. I want to share some memories related to Major Dhyan Chand. The National Sports Day is a tribute to Major Dhyan Chand Singh, who was a legendary hockey player of India. Let us know a little more about Major Dhyan Chand. Dhyan Chand was born on 29th August 1905 in Allahabad. He was called Wizard of Hockey for his excellent ball controlling skill. He is considered as one of the greatest hockey players in the history of hockey. He earned 3 Olympic gold medals in the year 1928, 1932 and 1936 in the field of hockey. Dhyan Chand scored more than 400 international goals in his career from 1926 to 1948, and in his entire career he scored more than 1,000 goals. Major Dhyan Chand was such a great player that if the ball stuck in his stick, then it used to remove only after scoring a goal. For this reason, officials once broke his stick during a match just to check whether his stick has any magnet or something else inside it or not. Such an outstanding player. Government of India decided to honor this legendary sports person by celebrating his birthday as National Sports Day since 2012. On this occasion of National Sports Day, the President of India gives away the national awards to the respective winners. Along with the highest sports award, which is Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, Arjun Award and Dronacharya Award, Dhyan Chand Award is also given on this day. As a tribute to Major Dhyan Chand, the National Stadium of Delhi was also renamed as Major Dhyan Chand Stadium. National Sports Day is celebrated every year on this day to spread awareness about importance of sports and games in our life, and also to salute the sports spirit of India, which holds our tricolor flag always high. Of 12th grade to give a detailed information on how to stay fit at home during this pandemic condition. Anshika. Respective guests, Honorable Principal Sir, Vice Principal Sir, teachers, students and parents, a very good morning to all of you. I am Anshika Chauhan of class 12. I am here to give some information about COVID-19 fitness at home. The pandemic COVID-19 means staying at home and sitting down. It is difficult for people to do sort of exercises at home, but it is more even difficult for the people who doesn't do any exercise. But at a time like this, people need to be as active as they can. Remember, just take a break from sitting by doing 3 to 4 minutes light physical movement such as walking or stretching. It will relax your muscles, it will improve your blood circulation and muscle activity. Regular physical activities benefits both mind and body. It reduces high blood pressure, control your weight, it reduces the risk of heart disease, stroke and 2 types of diabetes and various cancer. It also improves bone muscle strength and increase balance, flexibility and fitness.
For the older people, it helps to increase balance so that it prevents fall and injuries. Regular physical activity can give a day a routine, and we will be like stay away from our family and friends. It is also good for reducing our mental stress, for example depression, and delay the onset of dementia and improve overall feeling. I suggest to stay at home, stay safe and stay healthy. Thank you. Thank you, Anshika, for letting us know few tips to stay fit and healthy while staying at home. Now arrives the most awaited slot of session. I would like to invite Dr. Arun Singh Rathod, TGT Physical and Health Education, to deliver a speech on this occasion. Good morning everyone. Respected Principal Sir, KV number 1 Gwalior, my colleagues, TGT PHE, Sri Ajay Kumar Baghel and Shankar Bahadur Sir, and all staff and students. Very congratulations to all of you for celebrating this National Sports Day. नेशनल स्पोर्ट्स डे बाकी स्कूलों में जो सेलिब्रेट हो रहा है वो एक अलग बात है, पर जो केवी नंबर 1 ग्वालियर या ग्वालियर के जो भी स्कूल हैं उनके लिए ये एक गर्व का विषय है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ध्यानचंद जी हैं वो ग्वालियर से कनेक्टेड हैं। वो ग्वालियर में उन्होंने हॉकी खेली है। उनके भाई जो रूप सिंह हैं और मूल सिंह 2 भाई थे, तो रूप सिंह जो स्टेडियम बनाए वो उनके भाई के नाम पे बनाए, वो भी हॉकी के प्लेयर थे। और ध्यानचंद जी जो थे उनका पूरा नाम ध्यानचंद बैस था और झांसी में उनका घर था, और उन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन जो की है वो विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर से की है। तो एक ग्वालियर के केवी होने के नाते एक बहुत ही मतलब सौभाग्य की बात है कि आप सब बच्चे, टीचर्स और जितने भी लोग इससे एसोसिएटेड हैं वो सब लोग आज नेशनल स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं। और केवी नंबर 1 ग्वालियर अपने आप में स्पोर्ट्स के लिए फेमस है। यहाँ के बच्चों का जो पार्टिसिपेशन है, जो उनकी परफॉर्मेंस है, इसको केवी में लगभग सभी लोग जानते हैं। और जो आप जो कनेक्टेड हैं LNIP से, जो पूरे एशिया में बहुत अच्छे कॉलेजों में जो आता है फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में, तो आप लोग उससे कनेक्टेड हैं और आपका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। केवी के बच्चों जितने भी आते हैं और उसमें केवी नंबर 1 ग्वालियर का जब नाम लिया जाता है तो एक बहुत अच्छे स्तर पे लिया जाता है। तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि इस जो नेशनल स्पोर्ट्स डे जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसको हम सेलिब्रेट केवल इसलिए नहीं करते हैं कि हम बस उन्हें याद करते हैं या फिर मतलब कोई भी प्रोग्राम उनके नाम पे कर दिया है, नहीं। उनको याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि जो दी जाती है वो हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करके देते हैं। अभी कोरोना की वजह से कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं हो पा रही, तो आपको क्विज कराए जा रहे हैं, ऐसे राइटिंग कराई जा रही है, तो जिससे उसके बारे में आपको नॉलेज डेवलप हो। तो उस नॉलेज को हमें डेवलप करना है थ्रू फिजिकल एक्टिविटी और थ्रू एकेडमिक्स। कैसे भी जब हम खेलते हैं, कहते हैं खेलते हैं, पहले बोला जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब वो अपनी जगह सही है, पर खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब अब बदल चुका है। क्योंकि खेलोगे कूदोगे तो भी आप नवाब बन सकते हो, तो भी आप पैसा कमा सकते हो, तो भी आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकते हो और अपने आप को फिट रख सकते हो। और पढ़ोगे लिखोगे तो भी आप अच्छा करियर बना सकते हैं। तो इसमें हमें ये पता करना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है ना। एक स्पोर्ट्स को कई तरीके से देखा जाता है। स्पोर्ट्स का मतलब केवल ये नहीं है कि हम स्पोर्ट्स में जो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं तो फिर आप पढ़ाई नहीं करेंगे। आपको पढ़ाई करना है और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है। अब स्पोर्ट्स आप फिटनेस के लिए भी कर सकते हैं, स्पोर्ट्स आप एज ए कैरियर ले सकते हैं और एज ए एथलीट ले सकते हैं। एज ए एथलीट का मेरा मतलब है कि आप प्रोफेशनल प्लेयर बन सकते हैं। जैसे जो लोग ओलंपिक्स खेल रहे हैं या फिर किसी क्लब से खेल रहे हैं, कोई टूर्नामेंट खेल रहे हैं, IPL खेल रहे हैं, है ना। जो अभी ओलंपिक्स, जैसे आप सब ओलंपिक्स इस बार काफ़ी फेमस हुआ है
हर बच्चे को उसके बारे में नॉलेज है कि कौन ओलंपिक खेला, कौन गोल्ड मेडल लाया, है ना। तो अब लोगों में जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो रहा है। तो अगर आप खेलने में बहुत अच्छे हैं तो आप अपना करियर एज ए एथलीट ले सकते हैं। अगर आप एज ए एथलीट आप सक्सेस नहीं होते हैं तो एज ए प्रोफेशनल, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग अपने टाइम पे एक खिलाड़ी थे, उसके बाद हमने इसे एज ए प्रोफेशन सेलेक्ट किया, जिसमें आप जैसे हम लोग जो जॉब कर रहे हैं टीजीटी पीएचई बन सकते हैं। फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन एक सब्जेक्ट होता है, आप उसमें पूरी डिग्री कर सकते हैं, बैचलर डिग्री कर सकते हैं, मास्टर डिग्री कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स बन सकते हैं। साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो होती है, यूपीएससी प्री क्लियर करके आप उसमें डिप्टी डायरेक्टर की जो पोस्ट होती है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब उसमें आप सिलेक्ट हो सकते हैं, है ना। तो डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स की जो जगह आती हैं वहाँ पे आप बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर बन सकते हैं, है ना। स्टेट के जो सेक्रेटरी लेवल की जो पोस्ट होती हैं वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। फिटनेस में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जिम इंस्ट्रक्टर से लेके जिम मैनेजर, रिसोर्ट मैनेजर, स्पा और जो भी फिटनेस के जो फिटनेस क्लब्स होते हैं वो आप अपने खुद के आप रन कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा स्कोप है। अभी स्पोर्ट्स जो इंडिया में डेवलप हुआ है वो 1 से 2% डेवलप हुआ है। अभी 98 to 99% स्पोर्ट्स अभी इंडिया में डेवलप होना है। जब इतना स्पोर्ट्स डेवलप होगा तो उसमें मैन पावर की ज़रूरत होगी, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होगी, तो वहाँ पे भी जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे क्रिकेट आप देखते हैं तो क्रिकेट में केवल जो क्रिकेट प्लेयर खेल रहा है केवल वो ही नहीं है ना, वो प्लेयर जो खेल रहा है वो प्लेयर प्लस उसके जो इक्विपमेंट बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो फैक्ट्रीज लगाए हैं जिसमें बॉल बनती है, बैट बनते हैं और जो आपके उनके अदर इक्विपमेंट्स है, हेलमेट से लेके शूज़ तक, ये सारे के सारे मैन्युफैक्चरर हैं। ये मैन्युफैक्चरर्स कौन है? ये उनकी डिमांड क्रिएट होती है। जब कोई गेम बढ़ता है तो उसकी डिमांड क्रिएट होती है और उससे रिलेटेड पूरा इकोसिस्टम बनता है, मतलब उसके इक्विपमेंट्स बनेंगे, उसके प्लेयर्स बनेंगे, उसके कोचेस तैयार होंगे, तो कोचेस को भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है और आपके प्लेयर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इक्विपमेंट्स बनाने वाले को जो उनका जो बिजनेस है वो सेटअप होता है ना। कोचिंग क्लब्स खुलते हैं, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में स्टैटिस्टिक्स, जो लोग आपको स्कोर बोर्ड दिखाते हैं, स्कोर में कब रिकॉर्ड किसने तोड़ा, कब कहाँ बनाया, तो उनकी अलग वैकेंसीज होती हैं। और टूर्नामेंट जो इवेंट मैनेजमेंट होता है, जैसे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है, उसमें इवेंट मैनेजमेंट होता है कि आप इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराना है, कोई आईपीएल ऑर्गेनाइज करा रहा है, कोई प्रो कबड्डी ऑर्गेनाइज करा रहा है ना। तो नए नए गेम आ रहे हैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं कि आप ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फील्ड में जा सकते हैं। बहुत सारे इसमें कैरियर हैं। तो केवल ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स में अगर आप एथलीट नहीं बन सकते हैं, अगर आप कोई प्लेयर नहीं बन पाए पर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो एज ए कैरियर भी इसको हम चुन सकते हैं, है ना। इसमें पूरी पढ़ाई होती है, इसमें बैचलर से लेके पीएचडी तक पूरी पढ़ाई है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट अब ओपन हो रहे हैं, एलएनआईपी तो आपके पास में ही है, प्लस नेशनल यूनिवर्सिटी जो खोली गई है मणिपुर में, एलएनआईपी का एक सेंटर और है गुवाहाटी में, स्वर्णिम गुजरात यूनिवर्सिटी है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी जैसे ओपन किया है अभी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो हर स्टेट लगभग अब ओपन कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है। बाकी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन का डिपार्टमेंट रहता है, वहाँ पे भी कई कोर्सेज कराए जाते हैं। तो आप लोग उसमें अपना कैरियर चुन सकते हैं। और देन आप अगर कुछ नहीं चुनना चाहते हैं, आप अपना दूसरा लाइन में, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, कुछ भी बनिए, पर उसके लिए आपको फिटनेस की तो ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप फिट होंगे तो आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्ट, तो इसीलिए जो भी करिकुलम बनाया जाता है तो उसमें सारी चीज़ इंक्लूड की जाती है ना। तो हमें पार्टिसिपेट करते रहना है स्पोर्ट्स में, चाहे फिजिकल फिटनेस के लिए तो करना ही है, आपको करना है। आप अपने पेरेंट्स को मोटिवेट कीजिए, उनको भी वॉकिंग कराइए, रनिंग कराइए, नहीं है तो कोई रिक्रिएशनल गेम्स खेलिए जिसमें आप फिजिकली एक्टिव हो सकें, कम से कम 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के लिए तो हमें एक्टिव रहना ही है फिजिकली। साइकिलिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, बास्केटबॉल है तो बास्केटबॉल कीजिए, खेलिए, तो कोई भी गेम खेलें, पर आप फिजिकली एक्टिव रहें,
घर में आपके स्टेयर्स होती हैं, स्टेयर्स कीजिए, उन पे चढ़िए, अप एंड डाउन कीजिए, रोप स्कीपिंग कर सकते हो। बारिश हो रही है, घर से बाहर नहीं जा सकते, तो आप योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर हम एक्सरसाइज करना चाहें तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, और एक्सक्यूज़ अगर हम लेते हैं तो फिर एक्सक्यूज़ का कोई वो नहीं, लिमिट नहीं है, हम कोई भी बहाना बना सकते हैं। तो एक्सरसाइज करना है, फिट रहना है। कोरोना में आपने देखा ही है, जो लोग फिट हैं वो सरवाइव किए हैं, उनके जो इन्फेक्शन के चांस थे वो बहुत कम थे। अगर इन्फेक्शन हुआ भी तो वो लोग फाइट किया उनने कोरोना से, और वो जीत के वापस आए, है ना। तो जो फिट रहेगा वो सरवाइव करेगा। तो फिट रहिए, एक्टिव रहिए, स्पोर्ट्स में, फिजिकल एक्टिविटीज़ में, किसी में भी आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। अपने परिवार को, अपने सोसाइटी को फिट रखिए। जब हम सब फिट रहेंगे तो हमारा नेशन फिट रहेगा। तो इस नेशन को फिट बनाने के लिए फिट इंडिया मिशन भी चलाया गया है। तो उसके अंतर्गत बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं। अब कोरोना की वजह से तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, पर ये टाइम भी जाएगा। उसके बाद फिर से एक बार हम ग्राउंड पे आएंगे, फिर KVS नेशनल्स, स्पोर्ट्स, सारी चीज़ें दोबारा शुरू होंगी। पर तब तक हमें अपने आप को फिट बनाए रखना है, हेल्दी बनाए रखना है। तो मैं सबको यही कहूँगा, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे स्टूडेंट्स हो या पेरेंट्स हो, सब लोग फिट रहें, हेल्दी रहें, और कीप पार्टिसिपेटिंग इन फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स। कुछ ना कुछ करते रहिए, अपने आप को एक्टिव रखिए, यही मेरा मैसेज है। और मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस प्रोग्राम के लिए, और प्रिंसिपल सर को एक बार फिर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, और बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। For showering the intensity of today's occasion and hope it could be and use to each one of us. I would like to call Mr. Shankar Bahadur, Physical and Health Education Teacher, to deliver the speech on this occasion of National Sports Day. नमस्कार आदरणीय प्राचार्य, मुख्य अतिथि, छात्रगण, अभिभावक एवं शिक्षक साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम लोग आज राष्ट्रीय खेल दिवस को ऑनलाइन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस हम हर वर्ष मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस हर वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, और आज ही के दिन यानी 29 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न खेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनमें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। ये पुरस्कार उन कोचों एवं खिलाड़ियों को दिए जाते हैं जिन्होंने अपनी अथाह मेहनत और परिश्रम के बल पे भारत देश का नाम रोशन किया है। आज ही के दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया मिशन को स्टार्ट किया था, जिसका उद्देश्य देश के युवा, बच्चों, जवान, बुजुर्गों सबको अपने फिटनेस के प्रति सचेत रखना एवं प्रेरित करना है। और आज के दिन ही कई तरह के विद्यालयों में, स्कूलों में एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं ताकि बच्चों का ध्यान खेल कूद के प्रति प्रेरित हो सकें और अपने आप को फिट रख सकें। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे हमारे मेजर ध्यानचंद जी के बारे में। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 इलाहाबाद में हुआ था। उनका जन्म एक राजपुताना परिवार में हुआ था। वो ब्राह्मण रेजिमेंट में भर्ती हुए, और जब वो भर्ती हुए थे तो उनका खेलों के प्रति कोई रुझान, कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए कहा सकता है कि हॉकी की उनमें कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और परिश्रम से इस खेल में इतनी महानता उपलब्धि की कि उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। मेजर ध्यानचंद जी के मन में हॉकी के प्रति रुचि जगाने का श्रेय एक मेजर तिवारी को जाता है, जो खुद भी एक खेल प्रेमी और हॉकी के खिलाड़ी थे। मेजर ध्यानचंद जी के बारे में
जितनी बातें और जितनी किस्से कहे जाएं उतने ही कम होंगे, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनकी उपलब्धि के किस्से इतने ज़्यादा हैं कि जितने शायद ही किसी अन्य खिलाड़ी के होंगे। उनकी कप्तानी में भारत ने 3 ओलंपिक में लगातार स्वर्ण पदक जीता, जिसमें 1932, 1936 और 1940 के ओलंपिक हैं। वो इस तरह खेलते थे कि जैसे कोई जादूगर अपना खेल दिखा रहा है। हॉकी और बॉल पर उनका इस तरह नियंत्रण रहता था कि मानो हॉकी और बॉल उनके इशारे पे चल रही हैं। कई बार कई जगह उनकी हॉकियों को तोड़ कर देखा जाता था, चेक किया जाता था कि कहीं इसमें चंबक तो नहीं लगी है, कहीं इसमें किसी प्रकार की गोंद तो लगी नहीं है, कि क्योंकि बॉल उनकी हॉकी से इस कदर चिपकी रहती थी कि मानो कि बॉल उनके इशारे पे चल रही है। तो इस तरह के कई किस्से हैं जो मेजर ध्यानचंद जी के महान खेल के बारे में हमको बताते हैं। मेजर ध्यानचंद जी को फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में सर डॉन ब्रैडमैन के समतुल्य माना जाता है। सर डॉन ब्रैडमैन ने उनके बारे में कहा था कि ध्यानचंद इस तरह गोल करते हैं जैसे क्रिकेट में कोई रन बना रहा है। हालांकि ये दोनों खिलाड़ी अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार मिले थे। एक और अन्य किस्सा है, जब द्वितीय वर्ल्ड वार चल रहा था, ध्यानचंद जी का देश प्रेम इस कदर था कि एक बार जब हिटलर ने उनके खेल से प्रभावित होकर उनको जर्मन सेना में बड़ा पद देने की पेशकश की और जर्मन की तरफ से खेलने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया, लेकिन ध्यानचंद जी ने साफ मना कर दिया और कहा कि मैं केवल अपने भारत देश के लिए खेलूंगा। तो ये उनकी महानता थी कि जिन्होंने इतना बड़े तानाशाह का ऑफर ठुकरा कर अपने देश के लिए खेलना उचित समझा। कई बार ध्यानचंद जी खेलते थे और इस तरह से शॉट लगाते थे कि जो उनके प्रतिद्वंदी होते थे वो उनको खेल को देखते ही रह जाते थे। इसी किस्से में एक बार ध्यानचंद जी ने मैच के दौरान एक शॉट लगाया जो गोल पोस्ट पे जाके लगा, तो उन्होंने रेफरी से कहा कि ये जो पोल लगा हुआ है इसकी जो चौड़ाई है वो कम है। जब मैच को रोककर उस पोल की चौड़ाई नापी गई तो बाकी में उसकी चौड़ाई कम थी। तो इस तरह के कई किस्से हैं जो मेजर ध्यानचंद जी के बारे में, उनकी महान कलाकारी के बारे में हमको बताते हैं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी ने 42 साल की उम्र के बाद हॉकी से संन्यास ले लिया और 1979 में उनका देहांत हो गया। तो मेजर ध्यानचंद जी ने अपना सारा जीवन हॉकी के प्रति समर्पित किया और इस देश को हॉकी को वो उस मुकाम तक ले गए जहाँ से वापस लाना बहुत मुश्किल था। उनका एक किस्सा और है कि जो मेजर ध्यानचंद जी थे उनका नाम ध्यान सिंह था, लेकिन वो चांद की रोशनी में प्रैक्टिस करते थे, इसलिए लोगों ने उनके नाम के साथ ध्यान चांद जोड़ दिया। तो ये हमारे मेजर ध्यानचंद जी की उपलब्धता थी जो हमने आज उनके बारे में बातें की और सुना। और इसी के साथ ही मैं आप सबको फिर से एक बार शुभकामनाएं देना चाहूँगा राष्ट्रीय खेल दिवस की, कि राष्ट्रीय खेल दिवस को आज भी हम अपने दद्दा जिन्हें ध्यानचंद कहा जाता है उनको याद करें। और इसी के साथ मैं विराम देना चाहूँगा और आप लोग स्वस्थ रहें, घर में रहें, अपने पूर्णतः एक्टिविटीज़ करें। Thank you, Shankar sir, for sharing your valuable information for us. Now, I would like to invite our Honorable Principal, Sri Gaurav Kumar Dwivedi sir, to speak a few words on this occasion. नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 ग्वालियर के सभी छात्रों का, शिक्षकों का और उनके अभिभावकों का आज के इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप लोग जानते हैं 29 अगस्त प्रत्येक वर्ष भारत में खेल प्रेमियों के लिए एक विशेष दिन होता है, क्योंकि इस दिन हमारे देश के एक महान खिलाड़ी, एथलीट, हॉकी के जादूगर स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस हम बहुत ही प्रेम भाव के साथ मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद, जिनको हम प्यार से दद्दू के नाम से भी बुलाते थे, कहा जाता है कि उनके हॉकी में चुंबक थी। ऐसा एक बार हिटलर ने ओलंपिक खेल में भारत ने जब स्वर्ण पदक जीता था, उसके पश्चात हिटलर ने उनकी हॉकी को देखकर ये कहा कि आपकी हॉकी में ऐसा लगता है कि जैसे जादू, क्योंकि गेंद उनकी हॉकी से चिपक कर चला करती थी।
मेजर ध्यानचंद ने हमारे देश में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए विशेष योगदान दिया है और उन्हीं की प्रेरणा से न सिर्फ हॉकी बल्कि कई अन्य खेलों में भी खिलाड़ियों ने उनसे प्रेरित होकर अच्छा योगदान दिया और भारत देश का नाम रोशन किया। अभी इन हाल के दिनों में पैरा ओलंपिक गेम्स इस समय चल रहे हैं, उससे पहले ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया गया और हमारे देश के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन किया और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ओलंपिक में इस वर्ष भारतीय खिलाड़ियों ने किए। हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। गांव-गांव में हमारे जो लड़के और लड़कियां हैं उनमें खेलों के प्रति रुचि जागृत हो रही है और वो इस दिशा में भी पढ़ाई के साथ साथ खेलों की तरफ भी आकर्षित हो रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा समय समय पर नई नई स्कीम्स खेलों को बढ़ावा देने के लगाई जा रही हैं और बच्चों को इसके साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसी ही एक स्कीम खेलो इंडिया और जीतो इंडिया भारत सरकार के तत्वाधान में चल रही है और उसका एक छोटा सा अंश हमारे विद्यालय के प्रांगण में भी है, जहाँ पर कि एक स्पोर्ट्स हॉस्टल इस समय फंक्शनल है और यहाँ पर एथलेटिक्स और शूटिंग की कुछ लड़कियाँ हमारे यहाँ हॉस्टल में रहती हैं और प्रैक्टिस कर रही हैं और उनकी कोशिश है कि वो यहाँ से ट्रेनिंग लेकर ओलंपिक स्तर तक वो पहुँचे। उनकी सुविधाओं का विशेष ध्यान हम लोग रख रहे हैं और न सिर्फ ये 2 खेल, इसके अलावा एथलेटिक्स, इसके अलावा फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन या कोई अन्य खेल जिसमें छात्र रुचि रखता है, हमारे विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा उनको प्रमोट किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सुविधाएं हम धीरे धीरे जुटा रहे हैं और हमारे देश के जो यंग बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको प्रेरित हम लोग कर रहे हैं कि वो खेलों के प्रति अपना जो रवैया है, जो पुराना रवैया है जिसमें कहा करते थे कि खेलने से कैरियर नहीं बनता, बल्कि अब वो नज़रिया धीरे धीरे बदल रहा है। न सिर्फ शिक्षकों का बच्चों के प्रति बल्कि अभिभावकों का उनके बच्चों के प्रति और बच्चों का खेल के प्रति। हमारे देश के यंग बच्चे खेलों में रुझान जाहिर कर रहे हैं और अपना प्रदर्शन निरंतर सुधार करते जा रहे हैं। हमारे देश में अभी इस वर्ष हॉकी में हमने पदक जीता है और वुमेंस हॉकी में भी इस बार बहुत ही असाधारण प्रदर्शन हमारी लड़कियों का रहा। मुझे उम्मीद है कि इस वर्ष के ओलंपिक खेल और पैरा ओलंपिक खेलों में जो हमारा प्रदर्शन रहा है वो हमारे यंग बच्चों को प्रेरित करेगा और मेजर ध्यानचंद जिनका जन्म दिवस हम लोग 29 अगस्त को मना रहे हैं और उसी सिलसिले में हम जो आज कार्यक्रम करने जा रहे हैं वो खेलों को बढ़ावा देने के लिए और खेलों के प्रति रुझान जागृत करने के उद्देश्य से हम लोग कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि अभिभावक इस बात को समझेंगे और बच्चों के अंदर जो छुपी प्रतिभा है और खेल के प्रति जो जुनून है उसको और निखारने में हमारी मदद करेंगे। हमारा देश खेल की ऊंचाइयों तक पहुँचे। हम आशा करते हैं कि अभिभावक और शिक्षक मिलकर इन बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभाओं को समझेंगे, परखेंगे और उनको सही माहौल और सही सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए उनकी इस प्रतिभा को उच्च स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम सभी इस दिशा में कार्यरत हैं और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में भारत खेल के क्षेत्र में एक सुपर पावर बनकर उठेगा। इस प्रक्रिया में समय जरूर लगता है, लेकिन हम अगर निरंतर प्रयास करते रहें और उन बच्चों को उनकी छोटी सी एज से ही उनकी प्रतिभाओं को अगर हम समझें, पहचानें और निखारें तो निश्चित रूप से ये बच्चे जब बड़े होंगे तो हमारे देश के लिए खेल के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन करते हुए क्या करते हैं कि इस वर्ष ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के आयोजन में भारतीय खिलाड़ियों ने जो असाधारण प्रदर्शन किया है उससे प्रेरित होकर हमारे विद्यालय के बच्चे खेलों के प्रति अपने रुझान को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे और हम सब मिलकर, जिसमें शिक्षक और अभिभावकों का रोल बहुत अहम है, उनको खेलों के प्रति प्रेरित करेंगे और उनके अंदर जो छुपी प्रतिभा है उसको निखारेंगे और ताकि ये बच्चे आगे चलकर हमारे देश का नाम खेल की दुनिया में रोशन करें। आज के इस विशेष दिन जिसमें कि हम खेल दिवस के रूप में स्वर्गीय श्री मेजर ध्यानचंद जी को हम याद कर रहे हैं, उनके जन्म दिवस को हम मना रहे हैं और न सिर्फ मेजर ध्यानचंद जी जो कि एक असाधारण प्रतिभा के धनी थे, इसके अलावा भी खेल के क्षेत्र में हमारे देश में जिन खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया, हम सब उनको आज याद करते हैं, उनको नमन करते हैं और इस संकल्प के साथ कि हमारे बच्चे इन सभी प्रतिभाओं से प्रेरित होकर खेल के प्रति अपने जुनून को कायम रखें और
उसको निरंतर निखारते रहे। एक बार पुनः इस खेल दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you very much, sir. Hope we all be benefited by your ideology. Our event comes to an end. I would like to propose vote of thanks. I feel honored and privileged to be a part of this occasion. I would like to thank our guest of honor, Mr. Arun Singh Rathore, for accepting our invitation instantly and for spending his valuable time with us. I would like to thank our honorable principal sir for being a constant support and encouraging us to conduct this event in order to bring sportsmanship and discipline among students. Last but not least, I would like to thank vice principal sir and all the faculty, students who played a major role in bringing this event together. Thank you everyone. Jai Hind.